So hey guys, what's up? I am Prithvi, part of tech team in Geeks for Geeks, and I am doing BCA in my first year. And yeah, so I am going to teach you some basic Python. Yeah, and wait first, let me check my mic. Yeah, okay, it's okay. So. Okay, so let's start with the part one now. So this is one of the most basic function in Python, which you're going to use a lot. So what it does, whatever you will type inside this bracket, it will just print it out. Like if you want to type any number, you can, and it will just print it out down here. But अगर तुमको words print करवाना है, words, then you have to use this sign. Okay, and then inside it you have to type any word that you want, like hello world. ओके, तो बिना इस साइन के एरर आएगा, ये काम नहीं करेगा। खाली तुम नंबर एक प्रिंट कर सकते हो बिना उस साइन के। Okay, and if you want to print out both number and words, then you have to use this comma, and इसके बाद तुम्हें जो भी प्रिंट करना है वो कर दो। ठीक है, अगर इस बिना कोमा के करोगे तो वापस एरर आएगा। तो ठीक है, that's all in part 1. Let's move to part 2. Okay, so in part 2 we are going to discuss about variables and how to use them with print function. So for example, name equals to Prithvi, okay, and again for the word you have to use this side, and for the numbers you can just type any numbers without last side. के बाद अगर तुमको वेरिएबल्स प्रिंट आउट कराना है तो क्या था, अगर हमें वर्ड प्रिंट आउट कराना है तो हम ऐसे करते थे, है ना। बट फॉर द वेरिएबल्स you don't have to add any sign before and after them. Just this is enough. And so if I now print it out, it's working, right? So how does this work? Let me explain you. ओके, तो फिर इमेजिन का एक बॉक्स है किसका नाम है एज। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 20 की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 20 से। ठीक है, अब इसके अंदर 20 है। अब मैं प्रिंट में क्या बोल रहा हूँ कि प्रिंट करो एज, और एज के अंदर क्या है 20, तो ये सीधा 20 करेगा प्रिंट आउट। ओके, सो ठीक है, बस इतना ही था। अब after print we have one more function which is input.
So what it does now, it will take the input from the user. Okay, like if you run it and type anything like and so this first one was for the name and this second one is for age. एंड नाउ अगर मैं अब एंटर करूँगा तो ये प्रिंट ए, तो ये इसको ही वापस प्रिंट आउट करेगा, ये देखो, है ना। तो और एक कुछ चीज, अगर तुम जब भी यूजर से कोई भी नंबर करोगे इनपुट, कोई भी इंटीजर, तो फिर आईएनटी लगाना इम्पोर्टेंट है। और तुम इनपुट के अंदर अपनी कमेंट ऐड कर सकते हो, कोई सी भी, लाइक एंटर योर नेम here and your is here, ठीक है। और जब भी तुम नंबर मांगोगे अब यूजर से, इंट आएगा इनपुट से पहले, और एक ब्रैकेट जो कि इनपुट के फंक्शन के बाद क्रॉस होएगा। नेम का तो अभी काम ही नहीं है, ये निकालो। तो अभी क्या कर रहा है, ये मुझसे एज पूछ रहा है, तो फिर उसको ही प्रिंट आउट कर दिया, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, तुम अब कमेंट भी ऐड कर सकते हो, लाइक हाय यू आर, इसको बंद करो, फिर कॉमा, फिर इसके बाद इधर वापिस एक कॉमा। तो ये क्या करेगा, it will ask you for your age and after enter it will just tell you your age. So yeah, so that's all for part 2. Okay, so in part 3 we are going to talk about the loops. So loops are one of the most important thing in Python or in any coding language. Why? Because it saves our time and हमको सेम चीज बार बार नहीं करनी होती। कैसे कि अगर मेरे को हेलो प्रिंट करवाना है 5 times, so what I can do, I can just copy it and paste it again and again and again 5 times and then run it, right? But what if कि तुमको 50 times प्रिंट करवाना है, तो तुम क्या करोगे, लूप का यूज करोगे। कैसे कि for loop, this is one of the many loops in Python which you can use like this, for I in range and the amount that you want, the and the amount that you want for the loop, and then in the next line you have to give some space by pressing the tab key in your keyboard. Okay, and it's important to put this sign after the loop line. तो हमारा 5 times हो रहा है, अगर आपको 50 times कराना है हमें बस एक जीरो ऐड करनी है। तो ये देखो 50 times हो गया। एंड ये आई एक वेरिएबल है, इसको तुम किसी भी नाम से बना सकते हो, जैसे कि नंबर, काउंट, कुछ भी, ठीक है। अभी नंबर करता हूँ मैं इसको, आप फिर खाली एन सिंपल रखना। तो एंड अमाउंट भी तुम यूजर से ले सकते हो, कैसे कि अमाउंट इक्वल्स टू
अब ये बन गया एक वेरिएबल, वो कोई भी अमाउंट टाइप कस्टम लाइक 50, ठीक है। बट अगर तुमको ये यूजर से लेनी है तो फिर अगेन इनपुट फंक्शन जो कि पार्ट 2 में डिस्कस करा था हमने, एंड वी कैन ऐड आवर कमेंट। एंड वन मोर चीज, तुम नंबर्स मांग रहे हो अपने यूजर से, है ना, तो फिर आई एन टी का मतलब इंटीजर, और फिर एक ब्रैकेट इनपुट फंक्शन से पहले और एक ब्रैकेट इनपुट फंक्शन के बाद। ओके, और इधर ये वेरिएबल डाल दो तुम, जो ऊपर बताया था हमने। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट लाइन में ये इनपुट मांगेगा, उसको अमाउंट में सेव करेगा, ठीक है। और फिर जो भी नंबर अमाउंट के अंदर सेव होएगा ये उस उतनी टाइम से रन करेगा लूप्स को। एंटर अमाउंट 3 टाइम मैं हेलो को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो 3 and enter, you can see it's 3 time. So yeah, that's all for part 3. वन मोर थिंग, मैं तुमको ये बताना भूल गया कि एक लूप होता है जो कि हमारा वाइड, ओके। सो अगर तुमको इसको यूज़ करना है तो ऐसे कर सकते हो तुम, वाइड थ्रू फर्स्ट टी कैपिटल होना चाहिए इसमें वर्क करने के लिए, प्रिंट हेलो। तो अब ये क्या करेगा, अब ये इसको इनफाइनाइट टाइम तक करता रहेगा प्रिंट, लेकिन करना मत क्योंकि फिर तुम स्टॉप नहीं कर पाओगे इसको, और ये होता रहेगा। लेकिन इसको स्टॉप करने के तुमको ये बंद करनी होगी अपनी ऐप, या फिर कंट्रोल सी, मतलब फोर्स कोड, मतलब फोर्स स्टॉप वी एस कोड की शॉर्टकट की, इसमें रन कर रहा हूँ। अब ये कंटिन्यू रन हो रहा है, इन्फानाइट तक रन होएगा जब तक मैं स्टॉप नहीं करूँगा। तो मैं कंट्रोल प्लस सी, ये हो गया मैं स्टॉप, ओके। एंड ये वन मोर थिंग, मैं डेमो शो करता हूँ तुमको, एंड इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू एंड प्लस 1, ओके। Wait a second, and comma, yeah, now it will work. Yeah, you can see the speed, right? In the part 4 we are going to discuss about conditional statement. So there's 3 conditional statement in Python: if, and else, okay. But for now let's do this too, okay. So how we can use them? First, let's take the input from the user. So let's make a variable n equals to and our input function, right? What we can ask, enter t or f, okay. And now what we can do, we can compare if it's t or if it's f entered by our user, okay. So to compare it we have to write if n, because it's n, because it will be in n variable, right? So if n equals to double equals to
for compare. Okay, if n double equals to t, and again it's a word, so in this above two, sorry I forgot the name, print hello, otherwise कौन सा एंस है इसमें तुम ये नहीं लिख सकते कंडीशनल, इसमें तुम्हें सीधा ये लिखना होता है कि वन था क्या। ठीक है, क्योंकि इफ में तुम इसको एक स्टेटमेंट होगा एक कंडीशनल, पर एंस में अगर ये काम ना करे तो ये काम करेगी, तो इसमें तुम दे नहीं सकते एक कंडीशनल। ओके, सो इफ टी ये बोलेगा हेलो, ठीक है, अगर मैं टाइप करूँगा एफ तो ये टाइप करेगा बाय, ठीक है। बट ये तो हमारा एरर हो गया है, क्योंकि अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा फिर अगर नंबर्स टाइप करूँगा जब ये बाय करेगा है ना, कब मैं इसको 8 टाइप करूँगा टी ओ एफ की जगह जब भी बाय करेगा है ना, बाय रिटर्न आएगा, तो इसको हम फिक्स कैसे करें। अब हम यूज़ करेंगे एफ का। ओके, और इसको हम दे सकते हैं कंडीशनल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एफ एंड डबल इक्वल्स टू एफ प्रिंट बाय, ठीक है। और इधर क्या कर दे हैं फिर हम, क्योंकि ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, टाइप कर, ठीक एरर 404, ठीक है। अभी क्या करेगा, अभी पहले देखेगा कि टी है कि नहीं, ठीक है। अगर और फिर ये टी के बाद फिर चेक करेगा कि टी नहीं हुआ तो एफ है कि नहीं, पहले टी देखा टी है कि नहीं, अगर टी है तो इसको प्रिंट करेगा और खत्म हमारा ये, ठीक है। लेकिन अगर टी नहीं है तो जंप करेगा इधर सेकंड लाइन में कि एफ है कि नहीं, अगर एफ भी नहीं है तो ये सीधा यही आएगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं है इसमें, क्या है कब मैं एफ कहूँ तो वही कैसे मैं काम कर रहा था। बट अगर मैं अब कुछ भी टाइप करूँगा कैसे नंबर्स, फिर एरर 404 यही आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से कुछ नहीं है, तो अब ये प्रिंट होएगा हमारा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ओके, सो पार्ट 5 में अभी तक हमने कितना भी करा है, ठीक है, उन सबको एक में मिक्स करते हैं और कुछ बनाते हैं। कैसे कि सबसे पहले हमने क्या करा था, इनपुट नहीं वो प्रिंट, राइट, सो वी कैन से print hello user, okay, and it's a commit, so it will be in this, okay. And then what we did, we used input function, right, in the part 2. Then uh, username equals to input function and comment, enter your name, ठीक है। तब क्या होगा, यूजर का नेम सेव हो जाएगा इस यूजर नेम वेरिएबल में। अब हम मांगेंगे यूजर की एज,
again input, and your age. ओके, बट ये एक नंबर है, नंबर होता है हमारा इंटीजर है ना, तो int बिफोर इनपुट। तो फिर अभी इसको नंबर को नंबर में सेव करेगा, नंबर वाइज फॉर्मेट में, इंटीजर में। ठीक है, तो फिर क्या था हमने, आ, ठीक है, लूप्स एंड कंडीशनल। हाँ, अब हम कंडीशनल का यूज करते हैं। इफ यूजर इज, अगर 18 से कम है, तो क्या करेगा, विद सॉरी वर नॉट अलाउड, एंड एड्स। कुछ नहीं करेगा इसमें, कंटिन्यू होएगा सीधा। ठीक है, पर ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मेरे को लगा मैं मिस्टेक करी इधर। कुछ भी प्रिंट मत करो, between 20, तो सही है हमारा। अगर 18 से कम होती तो ये होता, लेकिन अभी कुछ नहीं होएगा प्रिंट। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा कुछ बनाते हैं, कैसे कि प्रिंट यूजर नेम कॉमा, एक काम करता है 2000 माइनस यूजर एज, इससे क्या होगा, हमें यूजर की डेट ऑफ बर्थ का पता चल जाएगा। ठीक, करंट ईयर लेना इधर हमको। हाँ, डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब आप इसका क्या करेंगे, dd means that date। हाँ, dob पर 85, you will die in dd, इसको कमेंट में। ठीक है, अब चेक करते हैं, is 20, you will die in 2090। ठीक है, तो लैग हो गया क्या मेरा वीडियो, नहीं, ठीक है, तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अरे एक और चीज़, वो मैंने लूप्स का यूज़ नहीं कहा था, तो अभी कर लो। तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, फॉर लूप एंड
85। ये 85 क्यों? क्योंकि 85 नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है ना? तो 85 प्रिंट DOB, और ये ओके। तो ये क्या करेगा, ये 85 टाइम्स इस लूप को रिपीट करेगा, जो कि है डेट ऑफ बर्थ को प्रिंट करना, और फिर उसमें +1 ऐड कर अपडेट कर रजिस्टर को वापस से प्रिंट करना। इसमें इसने क्या करा, तुम्हारी DOB डेट ऑफ बर्थ से लेकर 85 ईयर्स इसने प्रेस करे और प्रिंट करे, ठीक है। और फिर लास्ट में इसने ये कर दिया तुम्हारा डेट ईयर। तो इतना ही था। अब मैं देता हूँ आपको एक टास्क, ठीक है, hello.py में, जो कि है, एक सेकंड मेरे को बनाने दो पहले। ओके, तो मैं तुमको एक टास्क देता हूँ। तुमको एक ऐसा कोड लिखना है किसका आउटपुट ये आएगा, स्टार्ट नंबर मांगेगा, एंड नंबर मांगेगा, और इनके बीच के कितने भी नंबर्स होंगे उनको प्रिंट आउट करेगा, ठीक है, छोटे से बड़ा। तो ये करना तुमको, और ऐसे करता है, मैंने बता भी दिया, ठीक है। वाइल का यूज़ करना, इफ का यूज़ करना, और ये ब्रेक डाल देना इफ में नीचे, इस लूप को बंद करने के लिए, बस।